Hello and welcome everyone to this class on Indian judiciary in which we were covering yesterday recusal of judges and the judiciary being under RTI, Right to Information Act. कल हमने ये सारी चीजें कवर करी थी. जो एनालिटिकल पार्ट था जुडिशरी का वो हम कल कवर कर रहे थे, तो उसको आज वाइंड अप करेंगे, कोशिश करेंगे फटाफट से. तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. And your environment section of UPSC Civil Services exam will be starting from 4th of January. And this is an update. By 4th of January, I'll be able to wind up your Indian polity section, right? Geography classes as it is चलती रहेंगी. 2-3 दिन की क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज होंगी. उतनी हॉलीडेज नहीं होंगी जितनी शेड्यूल में दी गई हैं. थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे हॉलीडेज को ताकि सिलेबस को थोड़ा रफ्तार में लाया जा सके, राइट? रिमूवल ऑफ जजेस और ये सारा कुछ है. जजेस इंक्वायरी एक्ट, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू. I got a bit late today. Sorry because of that thing. Now, appointment of acting chief justice, ad hoc judges, all the basic factual details we've already covered. Jurisdiction of Supreme Court, Article 143, etc. That also we have covered in the last few lectures. So, in this class, we are going to cover the analytical topics. 1 or 2 analytical topics will be concluded today. Issues in news related to judiciary. The recusal of judges was one topic that we have covered. Then this Justice Arun Mishra case, land acquisition, rehabilitation and resettlement case, that was there. Then previous cases of recusal, CBI case, 3 judges recused themselves from hearing the case, challenging the appointment of M. Nageswar Rao as interim director. तो ये सारा कुछ था. काफी केसेस पुराने भी हैं. सीबीआई में एम नागेश्वर राव और आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर होते थे, उनको हटाने की कोशिश करी गई. वो चीज हम सीबीआई में कवर करेंगे, राइट? सारन सर ही लेंगे, राइट? मनु सारन सर ही लेंगे मोस्ट प्रोबेबली. So, former Chief Justice of India Deepak Mishra was criticized by 4 of his senior most judges for allocating cases of national importance. ये मैंने कल कवर कर दिया था. Then Ranjan Gogoi nominated to Rajya Sabha. This was the last issue that we were covering in the previous class. तो the nomination to Rajya Sabha just 4 months after his retirement ये cover हो गया था कल. Being the guardian of the constitution, the judiciary has to be independent. That is, it has to be insulated from pressures and inducements. तो कल मैंने आपको बताया था cooling off period की एक जो बात कही जाती है वो cooling off period होना चाहिए यहाँ पे, right? This was covered yesterday. Then this independence of the judiciary is ensured by many constitutional provisions. For example, judges do not hold their offices at the pleasure of the president. In other words, they cannot be arbitrarily removed by the government once they are appointed, and they can only be impeached by a special majority of both the houses of the parliament only on the ground of proved misbehavior. ये भी कवर हो गया था. Should judges be barred from post-retirement position? केटी शाह ने और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में जो आर्ग्यूमेंट था हमने वो भी स्टडी किया कल. Jumping to the issues that were left. Undermining the independence of judiciary under Article 124 Clause 7 of Indian Constitution, it provides that a retired Supreme Court judge cannot plead or act in any court or before any authority within the territory of India. However, this provision only restricts the post-retirement appointments in judiciary itself, but not in the posts of president, governor, member of parliament, etc. Right? So, thus, the post-retirement appointment of judges may threaten or undermine judicial independence. This is because some judges, not all, are offered post-retirement employment by the government. तो दिस में थ्रेटन और अंडरमाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस. इट इज ऑफन जब किसी जज को रिटायरमेंट के बाद एक एडवोकेट प्लीड नहीं करने दिया जाता, एडवोकेट की हैसियत से केस को आर्ग्यू नहीं करने की अनुमति है, तो ऐसे केस में किसी जज को ये कहना, ये अलाउ करना कि आप गवर्नमेंट में कोई पोजीशन हासिल कर लो, लेजिस्लेचर में कोई पोजीशन ले लो, ये पेटेंटली रॉन्ग हो जाता है, पेटेंटली गलत हो जाता है ना, आर्बिट्रेरी हो जाएगा ये बिल्कुल ही. और दिस इज अनबिकमिंग ऑफ दैट जज, एंड दैट अनबिकमिंग ऑफ द जज tarnishes the image of the judiciary too. Loss of constitutional property. If a judge decides highly controversial and contested cases
in favor of the government and then accepts a post retirement job, even if there is no actual quid pro quo, would this not lead to public perception that the independence of judiciary is compromised? If a judge decides highly controversial and contested cases in favor of the government and then immediately after his retirement or within a span of 6 months to 1 year accepts the post retirement job in the government, then ये तो यही हो गया ना कि क्विड प्रो को चल रहा है दोनों में। तो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन भी दी थी, इसको भी चीजों को आगे बढ़ाया नहीं गया। लॉ कमीशन ने कहा कि चैम्बर प्रैक्टिस जो है, जो जजेस बाद में एडवाइजर लग जाते हैं बड़ी बड़ी फर्म्स के, लीगल एडवाइजर और ये सब। अब मान लो कि मैं एक जज हूं, मैंने वोडाफोन केस में जजमेंट दिया और बाद में वोडाफोन ने मुझे ये बोला कि हम आपको 4 लाख रुपए महीने की नौकरी दे देते हैं एज अ लीगल एडवाइजर टू वोडाफोन। हो गई छुट्टी, है ना। ये चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, राइट। हाउएवर इट स्ट्रांगली रिकमेंडेड बैनिंग द पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस because the government was a large litigant in the courts. The commission's recommendations were never implemented. Done. Way forward क्या है? CJI ये भी हमने कवर कर लिया था कल। कूलिंग ऑफ पीरियड की भी हमने बात करी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या कहा वो भी हमने सभी किया। Then in that case Supreme Court held that Indira Gandhi government's decision to abolish, ये भी कवर हो गया था, right? Now coming to the master of the roster in the Supreme Court collegium. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को मास्टर ऑफ द रोस्टर का दर्जा दिया जाता है। आई हैव गिवन यू अ ग्लिम्स ऑफ दिस टॉपिक, सफिशिएंट एक्सटेंट तक हमारा इसका डिस्कशन भी हो चुका है। मास्टर ऑफ द रोस्टर रेफर्स टू द प्रिविलेज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस टू हियर द केसेस लाइक अ प्रिंसिपल डज द जॉब ऑफ असाइनिंग द क्लास टीचर्स टू वेरियस क्लासेस। जैसे कि प्रिंसिपल स्कूल में क्या करते हैं, कॉलेज में क्या करते हैं, कॉलेजेस की जो क्लासेस होती हैं कि इस क्लास का क्लास टीचर ये होगा, इस 5th क्लास का क्लास टीचर ये होगा, राइट। वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन केस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड असाइंस अ पर्टिकुलर केस टू अ पर्टिकुलर बेंच। ठीक है, कि ये केस की फाइल है, ये कौन सुनेगा, बेंच नंबर 2 सुनेगा, बेंच नंबर 3 सुनेगा, बेंच नंबर 4 सुनेगा, या ग्रीन बेंच सुनेगा, या सोशल जस्टिस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करेगा। दिस प्रिविलेज वाज एम्फसाइज्ड इन नवंबर 2017 व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच led by the then Chief Justice of India, Deepak Mishra, declared that Chief Justice is the master of the roster and he alone has the prerogative to constitute the benches of the court and allocate cases to the benches so constituted. No judge can take up the matter on this own unless allocated by Chief Justice of India as he is the master of the roster. Right. The immediate trigger for this was a direction by a 2-judge bench led by Justice Chelameshwar that a petition regarding a medical college corruption case involving an alleged conspiracy to bribe the Supreme Court judges be heard by a bench of 5 senior most judges of the Supreme Court. Right. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो एलिगेशंस थे वो सीजेआई दीपक मिश्रा के ही खिलाफ थे। ठीक है, तो डायरेक्शन बाय अ 2-judge bench that a petition regarding medical college corruption case involving alleged conspiracy to bribe the Supreme Court judges be heard by a bench। तो जस्टिस चेलामेश्वर ने उस टाइम पे ये कह दिया कि ये जो केस है 5-judge बेंच के द्वारा सुनवाई करी जाए इस केस की। लेकिन सीजेआई दीपक मिश्रा ने बोला रुको रुको, ठहरो ठहरो, तुम क्यों बोल रहे हो। जस्टिस चेलामेश्वर को चुप कराने के लिए कहा गया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर मैं हूं, मैं ये डिसाइड करूंगा, दीपक मिश्रा ये डिसाइड करेंगे कि ये केस 5 जजीय बेंच सुनेगा, 5-judge बेंच सुनेगा या 3-judge बेंच सुनेगा, या सुनवाई होगी या नहीं। ठीक है, he was asserting his own power as the CJI and he reminded the other judges and the country that CJI is the master of the roster although in a wrong case। गलत केस था ना ये, क्योंकि उस केस में सीजेआई खुद ही गिल्टी थे शायद, या उनके खिलाफ एलिगेशंस थे। प्रॉपर वुड बी उनके खिलाफ सिर्फ एलिगेशंस थे, तो यही कहना बेहतर होगा कि उनके खिलाफ एलिगेशंस थे। बट अगर मेरे खिलाफ एलिगेशंस है तो क्या मैं ही उस बेंच का गठन करूंगा जो इस पे सुनवाई करेगा? नहीं, है ना। तो जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी तो नवंबर 2017 में ये सब हुआ और सीजेआई ने अपनी
अपने दरवाजे पे जो एलिगेशंस रुक रहे थे उनको रोकने के लिए कि भैया कहीं दरवाजे के अंदर एलिगेशंस आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्या किया, खुद ही उस बेंच पे बैठ गए और ये कहा कि तुझे जो कॉलेज ब्राइबरी स्कैम है उसमें जो एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं और कोई और नहीं बल्कि वही प्रशांत भूषण जो आज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी हैं उनके ऊपर 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई, ये बोल के कि तुमने जो एलिगेशन लगाए हैं वो गलत हैं, बेसलेस हैं, तुमने जुडिशरी की इमेज को टार्निश किया है। खैर प्रशांत भूषण की बात करें तो कुछ लोग होते हैं जो औरों को सुधारे बिना बिल्कुल नहीं सुधरते। इस बार फिर दोबारा वो कंट्रोवर्सी में है 2020 में, राइट। तो बंदा जो है सुधरेगा नहीं, अच्छी चीज है प्रशांत भूषण जैसे 4 5 10 एडवोकेट और हो जाएं तो जुडिशरी का जो है गंगा स्नान हो जाएगा। नाउ जनवरी 12 2018 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर एंड जस्टिस कुरिया जोसेफ, इनको क्या करना पड़ा, देखो इसमें गोगोई भी हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इन्होंने मीडिया को बताया कि ये जो कोर्ट में चल रहा है कि जस्टिस दीपक मिश्रा मनमाने तरीके से केसेस को असाइन कर दे रहे हैं वो एक गलत तौर तरीका है, राइट। उन्होंने कहा कि देश हमें ब्लेम करेगा अगर हम आज चुप हो जाएंगे, हमें देश को यह बताना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जब डिसाइड हो रहे हैं हम केस में पार्टी नहीं है, हमें मौका नहीं दिया जा रहा। तो उनसे प्रेस ने बोला, क्रिटिसिज्म हुआ कि तुम मीडिया में आके ये बात क्यों कह रहे हो, तुम सीजेआई को जाके ये बात करो। तो उन्होंने बोला था सीजेआई को भी हमने कहा कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट केसेस जूनियर जजेस को क्यों दे रहे हो, जब सीनियर जजेस हैं हम लोग फ्री बैठे हैं तो हमें केसेस दिए जाएं, लेकिन सीजेआई ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए हमें मजबूरन प्रेस में आना पड़ रहा है। और जब ये हो रहा था तो रविशंकर प्रसाद भोले शंकर बन गए, उन्होंने बोला अच्छा ऐसा हुआ है तो ये मैटर तो इंटरनल मैटर है जुडिशरी का, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है, दिस इज अ मैटर इंटरनल टू जुडिशरी ही सेड एंड इट इज बेस्ट लेफ्ट टू द जुडिशरी टू रिजॉल्व इट। इतने भोले मिनिस्टर, समझ में आया। तो मिनिस्टर ने क्या कहा कि चलो ठीक है जजेस हैं, सीजेआई दीपक मिश्रा हैं, अपने ही हैं, कल को मान जाएंगे, 2-4 फेवरेबल जजमेंट्स दे देंगे। तो उन्होंने ये कहा, जस्टिस जो रविशंकर प्रसाद हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं, he was actually citing, he did not cite, he was actually working on the basis of doctrine of separation of powers, ठीक है, that judiciary will not interfere in the affairs of government and government will not interfere in the matters of judiciary। बट ये मैटर काफी संगीन था, जुडिशरी के जजेस खुद सीनियर मोस्ट जजेस जो कि कॉलेजियम का पार्ट हैं वो सामने आ रहे थे, है ना। तो दे रिगार्ड द मास्टर ऑफ द रोस्टर एज वन ऑफ द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स एंड अ कन्वेंशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, राइट। बट दे आर्ग्यूड दैट इट इज नॉट अ रिकॉग्निशन ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ द सीजेआई ओवर हिज कोलीग्स। मास्टर ऑफ द सीजेआई का मास्टर ऑफ द रोस्टर होना रिकॉग्निशन ऑफ सुपीरियरिटी नहीं है कि सीजेआई इज सुपीरियर देन हिज कलीग्स, इट इज जस्ट दैट one person was to be given responsibility for its effective exercise, तो सीजेआई को दे दी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजेआई के अलावा इनको भी दी जा सकती थी। एज सीजेआई these 4 judges said is only first among equals, a phrase that Chief Justice Mishra himself had used in the campaign for judicial accountability and reforms versus Union of India order. Further, they said that there are well settled and time honored conventions guiding the Chief Justice in the determination of the roster, including those about the strength of the bench to deal with a particular case. Right? Just 1 minute, guys. Just 1 minute. So this is there. Now, there have been instances where cases having far-reaching consequences for the nation and the institution has been assigned by the CJI, the then CJI Deepak Mishra, selectively to the benches of their preferences without any rational basis. Clear? So this is there. Now, coming here,
The debate is not simply about the personalities involved. It represents the culmination of the gradual deepening of a number of fault lines in the Indian judicial system and highlight the urgency with which they need to be addressed. First, the Supreme Court now consists of 26 judges who predominantly sit in the benches of 2. Compare this with the US Supreme Court, for example, where all of its 9 judges, जहां पे कि सारे के सारे 9 जजेस एक साथ बैठते हैं, राइट, और सभी लीगल माइंड्स अगर बैठते हैं तो जजमेंट का आउटकम कुछ और ही होगा, कुछ बेटर होगा, राइट, ओके। ऐसा नहीं होगा कि अभी क्या हो रहा है कि इतने सारे बेंचेस डिवाइड होने की वजह से वॉइसेस आर डिफरेंट वॉइसेस आर कमिंग, समझ में आया? एक स्वर में जुडिशरी नहीं बोल पा रही है, जुडिशरी की डिफरेंट वॉइसेस आ रही हैं। 2 जज कुछ बोलते हैं, फिर उसको वो किसी और 2 जजी बेंच के जो जजमेंट है, 2 जजेस बेंच वाली जो जजमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, फिर कोई और जजमेंट 5 जजेस का बेंच बनाया जाता है ना, तो इससे कंफ्यूजन हो रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कंपेयर किया कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब है सुप्रीम कोर्ट, ऑल दी जजेस शुड सिट टुगेदर, है ना। अगर बेंचेस ऑफ 2 में बनाएंगे, इतने सारे जजेस हो जाएंगे, कंफ्यूजन इज बाउंड टू अराइज, राइट और रॉन्ग, समझ में आया? So by comparison, the Chief Justice of India has significantly more discretion in determining which judges will hear and decide a case. By comparison, Chief Justice of India has significantly more discretion in determining which judges will hear and decide a case. Compare this with the US Supreme Court, for example, where all of its 9 judges sit together to hear the case. The Chief Justice of US Supreme Court therefore has no choice in the question of which judges will hear which case, and thereby removing any scope for ambiguity. There is no scope for ambiguity whatsoever. Right? So this is there. Now, any doubts thus far? समझ में आ गया ये टॉपिक? Right? And fortunately, this progressive centralization of power within the office of CJI has not been accompanied by a parallel strengthening of the accountability of this office. अगर CJI के ऑफिस को ये पावर दी गई थी तो अकाउंटेबिलिटी भी पैरेलली बढ़नी चाहिए थी, है ना, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए थी, right? But accountability उतनी नहीं बढ़ी है. The office of CJI remains answerable to none. A situation that was highlighted recently when in a case that potentially involved the CJI, the Chief Justice himself constituted a bench to hear it. Thus, the principle "no person shall be a judge in their own cause" simply did not apply to the office of CJI. हम कौन सी केस की बात कर रहे हैं? रंजन गोगोई केस की, right? In short, the power is increasingly being centralized with the CJI. If India wants to prevent the decay in one of the most vital institutions of our democracy, the only way out is to bring accountability and transparency to the office of Chief Justice without compromising on judicial independence. Without compromising on judicial independence. Clear? So ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात करते हैं क्विकली. रिसेंटली अ रिपोर्ट बाय विधि सेंटर फॉर लीगल, तुम लोगों को पता होगा डीएनए में मैंने कवर किया था ये टॉपिक, याद है थोड़ा बहुत? विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी वाज रिलीज्ड, नेमली अ प्राइमर ऑन द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, अ सॉल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम. रिपोर्ट पॉइंट्स आउट सेवरल इश्यूज इन पिचिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एज अ सॉल्यूशन. विधि सेंटर ये कह रहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी द पैनेशिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. Currently, the appointments of district judges and subordinate judiciary are done by respective state governments. But in recent years, there has been an invigorated push for the creation of a unified pan-India judicial service for
appointing them. All India Judicial Service has been pitched as a solution to judicial vacancies, lack of representation for the marginalized, and the failure to attract the best of the talents. Right, so this is there. Now, All India Judicial Service is a proposed cadre of judicial officers to man the judiciary at the lower level below High Court to recruited through an open competitive national exam. It is mooted to be an All India service under Article 312. We haven't yet covered Article 312 in our classes. We will be covering it in the coming classes when we will be talking about civil services. Okay? जब हम सिविल सर्विसेज की बात करेंगे तब इस आर्टिकल के बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे जरूर. तो नेशनल जुडिशियल कमीशन विल आल्सो बी कॉन्स्टिट्यूटेड to oversee the All India Judicial Service. This National Judicial Commission was suggested by Second ARC, Second Administrative Reforms Commission. Done? So, idea of All India Judicial Service was first mooted by First Law Commission of India as early as 1958 in its 14th report. ठीक है. All India Judicial Service was also supported by Chief Justices Conference of 1961, 63 and 65. 42nd Amendment Act of 1976 even made the provision for creation of All India Judicial Service under आर्टिकल 312. तो प्रोविजन है बट अभी ये डोरमेंट पड़ा है. यस इट आदित्य इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो अभी क्या है, डेडवुड है, ये आर्टिकल डोरमेंट है. इट इज नॉट बीन पुट टू लाइफ, पुट टू यूज, बट नो सच लॉ हैज बीन मेड सो फार. Comprehensive guidelines for the creation of All India Judicial Service were laid down by the Law Commission in its 116th report. ठीक है, 116th report. Recent government at the center has constantly been pushing for the creation of All India Judicial Service on the lines of All India Civil Services. Niti Aayog has also solicited for setting up of All India Judicial Service for appointing and recruiting judges in lower courts through an All India Judicial Services examination. Right? So this is there. Then this thing is there, strategy for new India. 3 years का जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था ना, 75 years इंडिया एट 75, 3 years के आगे मीडियम टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उसमें नीति आयोग ने लिखा है. नीड फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ह्यूज वैकेंसी ऑफ जजेस एंड द डिले इन रिक्रूटमेंट एट द लोअर लेवल. लोअर लेवल पे ही रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा तो फिर हाई कोर्ट के जजेस कहां से चूज करोगे. अब दूसरा पंगा क्या है, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन जजेस कहां हैं. लोअर लेवल कोर्ट पे जजेस ही नहीं होंगे, लोअर लेवल पे जजेस की रिक्रूटमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो जजेस कहां से होंगे, फिर स्पेशल कोर्ट कहां से बनेंगे. राइट, ऑलमोस्ट every law passed in last 5 years has got a provision. Every social welfare law, every gender protection और child protection law, पोक्सो एक्ट में पोक्सो कोर्ट्स की बात करी जाती है. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर क्रिमिनल पॉलिटिशियंस की बात करी जाती है. एवरी लॉ हैज गॉट अ प्रोविजन फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, बट वेयर आर द जजेस. राइट, huge vacancies of judges and delay in recruitment. Currently there are about 5400 vacant posts in the lower judiciary across the country and a pendency of 2.78 crore cases in lower judiciary, primarily due to inordinate delay in holding regular exams by the states. Clear? Dearth of good quality judicial officers, the ever continuing decline in their quality will delay the delivery of justice. 10th May 2017 Times of India. 9th May 2017 Times of India. The judgment of the Supreme Court has been cited in this case. Right, उसमें ये कहा गया है कि
नेपोटिज्म जो है उसको कम करने के लिए, जुडिशरी में जो नेपोटिज्म है और करप्शन है लोअर लेवल पे, उसको कम करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जल्द से जल्द इनैक्ट की जाएं। सरकार को गाइडलाइन दिया गया है, पार्लियामेंट को गाइडलाइन दी गई है, बट इस पे कोई अमल अभी तक नहीं हुआ। गॉट इट? So these things are there. Lack of finances with the state government. State judicial services are not attractive for the best talents due to low salaries, rewards and compensations by the state governments. Lack of specialized state training institutions. Adjudication is a specialization which requires the state of the art training institutes. Training पे कोई focus नहीं है lower level judiciary में, है ना? And professors, but state institutes do not allow such exposure to interns. Discretion of a narrow body. The process of selecting a good judge is a difficult job and should not be left at the discretion of few persons. However sagacious that may be, है ना? यानी कि 4 जजेस हैं, भले ही वो साधु के चोले में क्यों ना आए हों, भले ही वो राम का अवतार क्यों ना हो, लेकिन इतनी ज्यादा डिस्क्रिशन पूरी जुडिशरी की अपॉइंटमेंट ट्रांसफर के मैटर्स में सिर्फ 4-5 लोगों के हाथों में छोड़ना डेमोक्रेटिक यूज ऑफ पावर के अगेंस्ट जाता है। Subjectivity in the process. Current judicial appointments at the lower level and upper levels suffer subjectivity, corruption and nepotism on the part of collegium. Nepotism होता है कि चाचा विधायक हैं तो सुना है, लेकिन चाचा अगर जज हैं तो भतीजा लोअर कोर्ट का जज तो लग ही जाएगा, है ना? Hence there is a need to reflect the social reality and diversity of the country by establishing a neutral and impartial system of appointment of judges. Now the point is, will it lead to more representation from marginalized communities and women? अभी क्या है, जुडिशरी में कोई ऐसा हायर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब प्रमोट होते हैं तो कोई रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता, है ना? AIGS was also supported on the fact that its creation along with the provisions of reservations for the marginalized communities and women will lead to a better represented lower judiciary. Lower judiciary में अगर reservation वगैरह अप्लाई हो जाएगा तो फिर ज्यादा अच्छे से चीजें होंगी. But the fact is that several states already provide for reservation in their lower judicial services. ठीक है, लोअर जुडिशियल सर्विसेज में काफी स्टेट्स ऑलरेडी रिजर्वेशन प्रोवाइड करती हैं. तो अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड होने के बावजूद भी हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो SC ST कम्युनिटी के जजेस हैं, विमेन जजेस हैं, वो ज्यादा नहीं है. अगर ऐसा आलम है तो क्या होगा कि क्या ये जरूरी तो नहीं है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाने से मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी भी जजेस में, जुडिशरी में पाए जाएंगे. ओके, मैं स्लो बोलूंगा, सॉरी फॉर दैट. क्लियर है? यस, काफी कोर्ट्स में लोअर लेवल पे, लोअर जुडिशरी में रिजर्वेशन ऑलरेडी एप्लीकेबल है. 12 स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें रिजर्वेशन ऑलरेडी है. इन एडिशन यूपी, कर्नाटका, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ प्रोवाइड women with special reservation in judiciary. बट आज तक सिचुएशन ये है, अगर कॉलेजियम अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता, देखो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के 2 पार्ट हैं, तुम्हें पता होगा, शायद मैंने बताया एक बार पहले. लोअर लेवल पे क्या होता है, स्टेट PCS जुडिशियल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ना? यहां पे कुछ स्टेट्स में रिजर्वेशन है, कुछ में नहीं. अब ये जजेस लोअर कोर्ट्स में, यानी कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब जजेस यहां पे रहते हैं. फिर ये जब जजेस के 10-10 साल हो जाते हैं तो इनमें से कुछ जजेस को हाई कोर्ट में प्रमोट कर दिया जाता है. कौन प्रमोट करता है? कॉलेजियम. ठीक है, फिर हाई कोर्ट से ये जजेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं. हाई कोर्ट 1, हाई कोर्ट 2, पंजाब एंड हरियाणा, ओडिशा, सारे जजेस. यहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है. ठीक है, अब जो जज मेरिटोरियस होगा आफ्टर एंटरिंग द सर्विस वो प्रमोट होगा. अगर उसने अच्छी जजमेंट्स दी हैं, मेरिटोरियस काम किया है तो वो प्रमोट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. गॉट इट?
यहां पे कुछ स्टेट ने रिजर्वेशन दिया है, कुछ ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप बोलोगे ये आर्टिकल 16 के अगेंस्ट होना चाहिए। आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है। जुडिशरी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा हटके हो जाती है, ठीक है। जुडिशरी में मेरिट को ज्यादा प्रिजर्व करके रखना जरूरी हो जाता है, इसलिए it is optional for some of the states to provide reservation and some not to provide. Got it? ठीक है ना, सबको क्लियर है ये? नाउ ये हो गया कवर। देन विल इट लीड टू कर्नाटका ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस 2 एडिशनल कैटेगरीज ऑफ रिजर्वेशन विद इन दी caste based reservation for those from a rural background and those from Kannada medium backgrounds. Karnataka serves as an example of how states are best suited to assess the level of intersectional disadvantage of various communities. Unlike states, center almost never provides reservation for women in all India services. Clear? On the issue of caste, and all India judicial service may provide for SC ST reservation along with reservation for other backward classes. ठीक है, तो अगर हम इस समझ को ध्यान में रखते हुए ये करें कि सेंटर ऑलमोस्ट नेवर प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन। अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आएगा तो इट मे प्रोवाइड फॉर SC ST रिजर्वेशन along with reservation for OBCs। ठीक है, तो ये एक बेसिकली क्या है ना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगर हम क्रिएट करते हैं, दैट विल प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक वेदर रिजर्वेशन इज टू बी देयर इन जुडिशरी एट ऑल इंडिया लेवल और इट शुड नॉट बी देयर इन द जुडिशरी एट ऑल इंडिया लेवल। क्लियर? अब आपको मैं ये समझा ही रहा हूं तो एक और ब्रॉडर रिफॉर्म समझा देता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो गाइस, जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें देखोगे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट PCS होते हैं ना, पब्लिक प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स, और दूसरी तरफ IAS है, IAS, यानी कि दोनों है। स्टेट के पास लीवे है कि स्टेट अपने प्रोविंशियल PCS एग्जाम कंडक्ट करा के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपने ऑफिसर्स को स्टेट में ही ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया कंपटीशन के जरिए कुछ ऑफिसर्स आते हैं और वो स्टेट में काम करते हैं। तो यानी कि स्टेट में जो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, लेवल ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया दैट इज भारत एज अ प्रिंसिपल, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल मेंटेन हो सके, इसलिए मेरिटोरियस कैंडिडेट जो हैं, जैसे आप IAS बन जाओगे, आपका रैंक 1 आएगा, तो आपको अपनी पेरेंट स्टेट, जो स्टेट से आप बिलोंग करते हो, मान लो कि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, पंजाब से करते हो, हरियाणा से करते हो, अगर आपका रैंक 1 है और आपकी स्टेट में वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है, तो आपको स्टेट कार्डर मिल जाएगा, चांसेस होते हैं। हर साल क्या होता है, टॉप 10 टॉप 20 IAS जो ऑफिसर्स होते हैं उनको इक्वली स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मेरिट और मेरिटोरियस कैंडिडेट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया सो दैट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। समझ में आया? ठीक है ना। लेकिन जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, स्टेट हाई कोर्ट में या स्टेट लेवल स्टेट जुडिशरी की बात करते हैं, तो वहां पे एक ही मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अपॉइंट किए गए, इलेक्ट किए गए, सिलेक्ट किए गए जजेस। यहां पे हो सकता है पंजाब के जजेस इतने मेरिटोरियस ना हो जितने हरियाणा के हो सकता है हरियाणा के उतने मेरिटोरियस ना हो जितने राजस्थान के हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जजेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, जैसे हम यहां पे करते हैं IAS को, है ना? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेरिट, देयर इज sought to be achieved, there is sought to be achieved equality in the distribution of merit insofar as general administration is concerned, but there is no effort to distribute the merit in the judiciary equally amongst all the states. मैं अपना लाइन रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मैंने जो दिमाग में आया वो बोला है। मुद्दा ये है
कि स्टेट के प्रशासन में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में तो मेरिट को जो टॉपर्स हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाती है। एक टॉपर पंजाब को, एक हरियाणा को, एक राजस्थान को, और अगर 2020 के टॉपर्स इन 3 स्टेट्स को मिले हैं टॉप 3, तो अगली बार ओडिशा को, वेस्ट बंगाल को, गुजरात को मिलेंगे। इक्वली मेरिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है। लेकिन जब हम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ऐसा कोई प्रोविजन समझ नहीं आता है ही नहीं, क्योंकि स्टेट जुडिशरी में जो रिक्रूटमेंट होता है वो सिर्फ स्टेट के जरिए होता है। हो सकता है किसी स्टेट में लॉयर्स बहुत अच्छे हों, जैसे कि उत्तर प्रदेश, दी हब ऑफ द कांग्रेस रिक्रूटमेंट ऑफ लॉयर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ लॉयर्स बाय द कांग्रेस। काफी अच्छे लॉयर्स कांग्रेस ने रिक्रूट करे, है ना। यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट और ये सब हाई कोर्ट या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काफी चीजों के लिए, लीगल एक्यूमेन के लिए जानी जाती है ना। वेस्ट बंगाल भी है फॉर दैट मैटर, काफी सारे लॉयर्स वहां से भी थे। तो अब वहां पे तो हो सकता है अच्छे जजेस हों, वहां पे जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे वेस्ट बंगाल का, वो नेचुरली उनका बैकग्राउंड लीगल होगा, वो पैदा होते उनको बताया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ मदर एंड फादर, होता है ना डाइनिंग टेबल डिस्कशंस, राइट। सो लॉ कमीशन ने बोला है, पीछे हमने पढ़ा ना कि लॉ कमीशन ने 1958 में ही कह दिया था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए और ये सब, राइट। अब आगे चले। Done? Now, however, Supreme Court recently held that SCs and STs can avail the benefit of reservation in the state government jobs only in their home states, domicile states, and not when they have migrated or they have been shifted to some other cadre. The same principle is usually followed even for OBC reservations. इसको पढ़ो ध्यान से। I'm so sorry. Thus, instituting an all India judicial service would mean that nationally dominant SC, ST and OBC groups would be at an advantage as they can compete for judicial posts across the country. On the other hand, if the process of recruitment stays with the states, these dominant groups would be disqualified because of the domicile requirement. समझ में आया ये? Yes, Aditya, you are right. You got it right. Thus, the present system of recruitment does ensure adequate representation of marginalized communities, and hence the proposal for All India Judicial Service needs reconsideration. Clear? क्लियर है ना ये पीपीटी पे जो टेक्स्ट है? Now, contempt of court. Recently, the Supreme Court of, तुम लोगों को याद होगा मैंने अगस्त के मंथ में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये इश्यू बहुत अच्छे से कवर किया था। फिर भी जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर यू गाइस। Recently, the Supreme Court of India initiated the proceedings for criminal contempt of court against lawyer activist Prashant Bhushan. The contempt charges were lodged in the context of comment made on social media targeting the current Chief Justice of India. जुडिशरी बाइक पे सवार थी, राइट। सीजेआई जो है हार्ले डेविडसन चला रहे थे किसी बीजेपी के लीडर की, और दैट टू विदाउट मास्क। The Supreme Court has found lawyer Prashant Bhushan guilty of contempt of court for 2 tweets in which it was said that it had shaken the very conscience of foundations of constitutional democracy. जुडिशरी के ऊपर कुछ डाउट्स कास्ट किए थे उन्होंने, है ना। Bhushan's first tweet pertained to a picture of Chief Justice of India, S.A. Bobde, in which he is seen sitting on a high-end motorcycle, that too without mask.
While Bhushan later expressed some regret, the bench held that the tweet was not against CJI in his individual capacity, but as the head of the judiciary. क्योंकि उन्होंने लिखा था कि CJI, अगर वो ये लिखते ऐसे बोबड़े तो वो बच जाते, है ना. The court refused to accept his tweet as written out of anguish. In the second tweet, Bhushan gave an opinion on the role of the last 4 Chief Justices of India in the context of state of affairs in the country, जिसमें दीपक मिश्रा भी एक थे, right? Court made the following observations. It may be better in many cases for judiciary to adopt a magnanimously charitable attitude even when utterly uncharitable and unfair criticism of its operations is made out of bona fide concern for the improvement. ठीक है, even when unfair criticism of operations of judiciary is made out of the concern, जब मेरा अगर क्रिटिसिज्म अनजस्टिफाइड भी है, अनफेयर भी है एज अ नागरिक, बट अगर मेरी भावना सही है कंट्री के लिए, ठीक है, तो जुडिशरी को एक दया भावना अपनाते हुए मुझे माफ कर देना चाहिए, प्रशांत भूषण को माफ कर देना चाहिए, ठीक है. However, when there appears some scheme and design to bring about results which have the tendency of damaging the confidence in our judicial system and demoralize the judges, those interested in maintaining high standards of fearless, impartial and unbending justice will have to stand firmly. ठीक है, तो जहां पे जुडिशरी को ये लगे कि एक डिजाइन है, एक प्रोपेगेंडा है जुडिशरी की इमेज को मिलान करने का, वहां पे जुडिशरी कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. जजेस ने अपनी जजमेंट में ये जजमेंट देते हुए ये सब बातें कही, कोर्ट ने ये सब बातों को ऑब्जर्व किया, ठीक है. वाकयात जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ वो ये हुआ. सुओ मोटो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, यानी कि किसी ने केस फाइल नहीं किया था प्रशांत भूषण के खिलाफ. सुओ मोटो मींस on its own judiciary initiated the proceedings against the senior advocate Prashant Bhushan, accusing him of abuse of court's contempt jurisdiction, which for good reason is to be exercised sparingly and with circumspection. Judiciary को extra caution use करते हुए ये use करना चाहिए. It is because according to some experts there is nothing in Mr. Bhushan's tweets that qualify as contempt of court. ठीक है, his tweets are an exercise of his fundamental right. मिस्टर भूषण ने ये कहा कि मेरी ट्वीट जो है वो मेरा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू फ्रीली एक्सप्रेस हिमसेल्फ बाय वे ऑफ कमेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑन द कंडक्ट ऑफ सीजेआई एज अ प्राइवेट सिटीजन. जब इन्होंने ये कहा ना कि प्राइवेट सिटीजन है, तो उन्होंने बोला कि आपने सीजेआई टर्म क्यों यूज किया है. जुडिशरी ने ये कहा कि आपने सीजेआई टर्म यूज करके ऐसे बोबे के बारे में जो लिखा है वो प्राइवेट सिटीजन की कैपेसिटी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीजेआई इज एन इंस्टीट्यूशन. हैड ही नेम्ड ऐसे बोबे ओनली विदाउट यूजिंग द पोजीशन सीजेआई, then he would have got a lenient treatment at the hands of judiciary. But since he is naming and blaming the institution, he was given a punishment, even though a token punishment of 1 rupee. Clear hai? Also, these tweets in the question appear to be in the realm of perception and comment and don't seem to have transgressed into contempt. The general principle on contempt is that one can criticize a judgment but you can't attribute motives to the judge. You can criticize a judgment, ठीक है. अगर आज मैं क्रिटिसिज्म करता हूं तो मैं अगर मोटिव देता हूं कि जज की ये मंशा रही होगी, वो गलत है ना. मैं आज वोडाफोन जजमेंट को क्रिटिसाइज करूं तो मैं ठीक हूं, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वोडाफोन जजमेंट में जज ने इसलिए ये कहा है क्योंकि जज को पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन चाहिए थी, वो गलत है, ठीक है. लेकिन क्या करें, हम तो छोटे लेवल पे है तो चलता है सब. मोर इंपॉर्टेंटली द जजमेंट कैन एडवर्सली इंपैक्ट जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है. रिफॉर्म्स कैन हैपन ओनली. अब इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि रिफॉर्म्स तो तभी होंगे ना जब जुडिशरी वुड रेंडर इटसेल्फ अकाउंटेबल. If the judiciary is not rendering itself accountable to the public, to the criticism
एंड जुडिशरी स्नबिंग ऑल द क्रिटिसिज्म, चुप करा दिया सबको, पेनल्टी लगा के। पहले वाले केस में, कॉलेज ब्राइबरी केस में, यही प्रशांत भूषण थे, लेकिन शांति फिर भी नहीं थी। 25 लाख रुपए पेनल्टी लगवाई इन्होंने अपने ऊपर, उसके बाद भी शांत नहीं हुए, इसलिए शायद इनका नाम है प्रशांत, राइट। तो इन्होंने दोबारा से केस किया। रिफॉर्म्स कैन, दोबारा से क्रिटिसाइज करते हुए जुडिशरी को, रिफॉर्म्स कैन हैपन ओनली इन अ क्लाइमेट ऑफ आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म एंड अनलिमिटेड डेलिब्रेशन। ओनली अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस can create an organic judiciary that is sensitive to people's concerns, that is sensitive to constitutional concerns. Clear? A pre-censorship on institutional criticism not only curtails the freedom of speech and expression of a citizen, it also ultimately causes damage to the very institution of judiciary. Got it? Clear है guys? Article 142 clause 2 enables the Supreme Court to investigate and punish any person of its contempt. अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई अननेसेसरी जो क्रिटिसाइज कर रहा है जुडिशरी को, कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 यूज करते हुए उसे पनिशमेंट दे सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 215 conferred a corresponding power on the high courts to punish a person of contempt. So if the question comes, do high courts have the power to issue a contempt notice? Yes. So using these two articles, article 142 and article 215, an act has been created. Article 215 or 2 article 129 के अंदर it gives the statutory backing to the idea, the Contempt of Courts Act 1971. Clear? Clear है सबको? Take 1 minute and come up with your doubts. If you have any doubts, you can ask me directly right away. Shall we move ahead? So, Contempt of Court Act 1971 outlines the procedure in relation to investigation and punishment for contempt. The elements generally needed to establish a contempt are making of a valid court order, knowledge of the order by the respondent, ability of the respondent to the order, to the notice to render compliance. मेरे पास अगर ability है, मेरे को कोर्ट ने नोटिस भेजा लेकिन मैं फिर भी नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं देख लेंगे, हवा में ले रहा हूं, हल्के में ले रहा हूं, ठीक है, willful disobedience of the order. So this act divides the contempt into two parts, civil and criminal contempt. Civil contempt is willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other processes of a court, or willful breach of an undertaking given to the court. Clear? Criminal contempt, it is any publication which may result in scandalizing the court. Criminal, scandalizing the dignity of the court by lowering its authority, public criticism, unwarranted criticism. Scandalizing the authority of the court broadly refers to the statements or publications, be it on Twitter, which have the effect of undermining the public confidence in the judiciary. Interference in the due course of a judicial proceedings. अगर कोर्ट के कामकाज में कोई दखल देता है जानबूझ के, अगर कोर्ट का केस चल रहा है और मीडिया में कोई ट्रायल कर रहा है या कुछ ऐसा, वो भी गलत है, इंटरफेरेंस। लेकिन
कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जो हम हल्के में, जो कि जुडिशरी खुद ही नहीं पता जुडिशरी को कि एक तरफ कोर्ट की अदालत चल रही है, एक तरफ आपकी अदालत चल रही है, राइट। एक तरफ सलमान खान गिल्टी है, दूसरी तरफ सलमान खान रजत गुप्ता या जो भी हैं वो उनकी जेब गिली करते हुए, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोई भी जस्टिस के रास्ते में बाधा यदि उत्पन्न करे। हाउएवर innocent publication and distribution of some matter, fair and reasonable criticism of judicial acts and comments on the administrative side of the judiciary do not amount to contempt of court. They can do so. Salsa bill did this contempt of courts act does not cast any duty on the court. It is just that if they show desire, they can do that. Okay. 21st Law Commission under Justice B.S. Chauhan was established in 2015. It submitted its report on the Contempt of Courts Act 1971. The report concluded that there was no requirement to amend the act. Report ने ये conclude किया कोई ऐसी requirement नहीं थी to amend the act. ठीक है, तो Contempt of Court Act को सही ठहराया 21st Law Commission ने, क्योंकि एक डिमांड ये भी उठ रही थी कि Contempt of Court is this Contempt of Court Act gives unflinching या फिर ये कहो unlimited powers in the hands of the judiciary to punish just anyone. Contempt है क्या? Scandalizing the authority of the court है क्या? क्या इसकी कोई सटीक परिभाषा है? एक दायरे में लिमिटेड मीनिंग है? अगर नहीं है तो आप किसी को भी पकड़ के कुछ भी बोल दोगे, है ना। समझना जरा बात को, समझ आ रही है चीज? क्लियर? Done. So this is there. Now, coming to the other aspects, Contempt of Courts Amendment Act 2006. The Statute of 1971 has been amended by the Contempt of Courts Amendment Act 2006 to include the defense of truth under Section 13 of the original legislation. Right? अमेंडमेंट एक्ट 2006 में ये किया गया, अगर कोई ट्रूथफुल स्टेटमेंट है कि जुडिशरी में ऐसे बोबडे अगर बिना मास्क के हार्ले डेविडसन पे बैठे थे तो उस पे क्या गलत है, उसमें कुछ गलत तो है नहीं, है ना। डिफेंस ऑफ ट्रूथ इंप्लाइज दैट कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ एज द वैलिड डिफेंस। अगर प्रशांत भूषण अपने डिफेंस में, अपने संरक्षण में ट्रूथ का हवाला लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है दैट इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, देन इट इज फाइन। सेक्शन 13 दैट ऑलरेडी सर्व्ड टू रिस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ द कोर्ट इन द सेंस दैट they were not to hold anyone in contempt. Judges should not hold anyone in contempt unless it would substantially interfere with the due process of justice. ठीक है? The amendment further states that the court must permit justification by truth as a valid defense if it is satisfied that it is in the public interest and the request for invoking the said defense is bona fide. Clear? So this is there. The text of the law is so wide and elastic that anything critical could be brought within the ambit of this definition. The provision is vitiated by vagueness, whereas precision is the hallmark of law. जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैंडलाइजिंग का मतलब क्या है, इसके दायरे में क्या क्या आएगा। क्या किसी जज के पास अगर एसेट्स ज्यादा हैं, क्या कोई जज किसी बीजेपी या कांग्रेस के हार्ले डेविडसन पे अगर घूम रहा है, बाइक पे घूम रहा है, तो आप ये कहोगे कि ये स्कैंडलाइज कर रहा है कोर्ट की अथॉरिटी को अगर मैंने उसे क्रिटिसाइज कर दिया या प्रशांत भूषण ने क्रिटिसाइज कर दिया। ठीक है, प्रोविजन इन द लॉ इज वेग whereas precision is the hallmark of law. Article 19 on the other hand
gives the right to freedom of speech and expression to all the citizens, while contempt provision curbs the people's freedom to speak against courts functioning. Law therefore is antithetical to the idea of deliberative democracy. Democracy is all about deliberations, discussions, debates and then decisions. आप हमें डेलिब्रेट ही नहीं करने दे रहे हो. आर्टिकल 19 विद आर्टिकल 19 कहां है? आर्टिकल 19 जिंदा है या मर गया या मार दिया गया या कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बोझ तले दब गया, है ना? ये सारी चीजें. नाउ लायबल टू मिस यूज, देखो इसमें थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ. एक तरफ जुडिशरी जो आर्टिकल 32 में ये सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 3, उस वही जुडिशरी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के चलते इन्हीं आर्टिकल्स को कुचल दे रही है. समझ में आया ना? थोड़ा सा जज्बाती एनालिसिस तुम्हें अपने ऐसे पेपर वगैरह के लिए बचा के रखना होगा. इंटरव्यू में काम नहीं आती ये चीजें, आंसर राइटिंग में काम नहीं आती. समझ ये चीजों की होनी चाहिए. एक तरफ तो तुम्हें कस्टोडियन बनाया गया है, दूसरी तरफ तुम लोगों को कस्टडी में डाल रहे हो. क्या यूज करके? आर्टिकल 142 यूज करके, आर्टिकल 215 यूज करके, है ना? On one hand, judiciary has been labeled as the custodian of fundamental rights, guardian of fundamental rights. On the other hand, it is putting people under custody, legal custody, for exercising their freedom of speech and expression. Liable to misuse. The law is very subjective, which might be used by judiciary arbitrarily to suppress their criticism by public. Colonial hangover. Contempt powers of judiciary started during colonial rule has been continued in India, whereas England abolished the offence of scandalizing the court authority in 2013. हमने उन्हीं से ही सीखा था ये. अब उन्होंने इसे अबॉलिश कर दिया, लेकिन हमें आज भी याद है ना? ब्रिटिशर्स ने ये किया था जब भगत सिंह ने वहां पे 2-4 गोले, 2 बॉम्ब जो है ब्लास्ट कर दिए थे, है ना? वो सारी चीजें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उस टाइम में, अंग्रेजों के जमाने में, जब यहाँ पे फॉरेन रूल था तब के लिए तो सही थी. लेकिन आज तो डेमोक्रेटिक रूल है, और अगर एक सिटीजन एक लेजिटिमेट एकेडमिक वे में क्रिटिसाइज कर रहा है, judiciary should use that as an opportunity to remedy its own state of affairs rather than putting these people behind bars. समझ में आया? You can write this point in essay paper. ये तो आप यूज कर सकते हो, है ना? ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो. ये तो बिल्कुल कॉलोनियल हैंगओवर वाला पॉइंट आप ही के लिए है. दिस कुड वेरी वेल बी यूज्ड इन मेंस टू योर एडवांटेज. क्लियर? 129 में समझा देता हूं ट्विंकल, अभी थोड़ी देर दे दो. क्लियर? कोई डाउट है किसी को? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? Any doubt? देखो, जहां तक आर्टिकल 129 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए उसके पास पावर है टू पनिश एनीवन फॉर मिस पब्लिकेशन ऑफ इट्स रिकॉर्ड या कुछ ऐसा. यानी कि आर्टिकल 129 इज द माइल्डर वर्जन ऑफ आर्टिकल 142. आर्टिकल 142 इज लाइक अ सुदर्शन चक्र. ठीक है, ठीक है. लेकिन यहां पे जो आर्टिकल 129 है वो एक वे से हम प्राइमरी सोर्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 एनैक्ट किया गया है. राइट? कोर्ट ने खुद ही कहा है, इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्टेम्प्ट पावर इज अंडर आर्टिकल 129 एज द पावर अंडर आर्टिकल 142 इज क्वालिफाइड बाय एनी लॉ दैट द पार्लियामेंट मेक्स. आर्टिकल 129 गिव्स द अनफ्लिंचिंग पावर, limitless power to punish just anyone for the contempt of court. On the other hand, article 142 says that subject to a law made by the parliament. Contempt of court power of the Supreme Court subject to a law
made by the parliament. यानी कि limits could be imposed on the contempt power under article 142 if the parliament enacts a law in this manner that courts are not given the limitless power. Done? Vrisha, it is not stuck, it is working fine बच्चे. ठीक है, अब आपने पूछा है तो लिख लो. द कोर्ट इन PN डूडा, PNDUDA वर्सेस द कोर्ट इन PN डूडा वर्सेस P शिवशंकर. P शिवशंकर, ठीक है, भोले शंकर भांग पीते थे ना, P शिवशंकर, ठीक है. कैटेगोरिकली हेल्ड दैट the primary source of contempt power of the court is under article 129. ठीक है. Clear? Shall we move further? कॉलोनियल हैंगओवर होता है. अब देखो, हैंगओवर होता है कि जो पास्ट का कुछ रिगालिया, कुछ फीलिंग रह गई हो. समझ में आया? जब आप पास्ट में होते हो तो आपका कुछ रह जाता है पास्ट का, उसे कॉलोनियल हैंगओवर बोला जाता है. जैसे कॉलोनियल टाइम्स का आज भी हमारे यहाँ पे कुछ पुराने रूल्स लॉज रह गए हैं, ठीक है, तो उसको कॉलोनियल हैंगओवर बोला जाता है. Done? Then sends wrong signal. These cases show that the country's highest court is not tolerant of its outspoken critics, and that it is highly sensitive to criticism, not the spirit of democracy. Yes, Aditya, nicely put. Not aligned with the sedition jurisprudence. Sedition जो है, while the courts have made some effort to narrow the remit of sedition. Sedition क्या है? देशद्रोह, सेक्शन 124A, कन्हैया कुमार वाले आर्टिकल्स, ठीक है. आईपीसी में देशद्रोह क्या है? अब कन्हैया कुमार ने नारा लगाया, इस देश को चाहिए आजादी. किससे आजादी? उन्होंने क्वालिफाई कर दिया. इन लोगों ने ये बोला, भूखमरी से आजादी, गरीबी से आजादी, ठीक है. उन्होंने ये नहीं कहा. सेडिशन का मतलब होता है यदि मैं एक दूसरे देश बनाने की मांग करूं, यदि मैं ये कहूं कि कश्मीर को आजादी चाहिए इंडिया से, उन्होंने ये नहीं कहा था. दे वर वेरी केयरफुल. उन्होंने बोला इस देश को चाहिए आजादी. किससे? गरीबी से, भूखमरी से, आतंकवाद से आजादी, है ना. तो जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सेडिशन लॉ का सेक्शन 124 का रॉन्गफुल एप्लीकेशन किया है, गलत वे में अप्लाई किया है. अगर कोई भुखमरी से आजादी मांग रहा है तो वो गलत नहीं है. तो कोर्ट्स ने सेडिशन की जो सरकार की पावर है कि कोई सरकार की अनड्यू आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसमें तो लिमिट कर दिया. सेडिशन की पावर को लिमिट कर दिया कि सरकार का अगर वैलिड क्रिटिसिज्म होता है तो वो सही है. लेकिन जब बात अपने दरवाजे पे जुडिशरी के आके रुकी तो ये कहा कि नहीं नहीं, हम बाइक पे सवार हैं तो भी आप हमारा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते. जब बात सरकार की पावर की थी, सरकार के पास सेम पावर है
सेक्शन 124A में। कॉन्टेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हो इसे। अगर कोई सरकार का कॉन्टेम्प्ट करता है, सरकार को लगता है कि अनड्यूली किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो सरकार उसे, पुलिस उसे सेक्शन 124A में गिरफ्तार कर सकती है ना। अब कोर्ट्स ने इसकी वैल्यू को तो रिड्यूस कर दिया, ये कहा कि सेडिशन, जस्ट एनीथिंग कैन नॉट बी लेबल्ड एज सेडिशन। अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मैं ये कहूं ये सरकार बेकार है, तो मैं ये नहीं कह सकते कि ये मैं जो देशद्रोही हूं। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह का मामला, है ना। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा तो मैं सरकार को गलत कह रहा हूं, मैं इंडिया को गलत थोड़ी कह रहा हूं, है ना। अगर मैं इस देश में रहते हुए ये कहूं कि इस देश को चाहिए आजादी, यानी कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को आजादी चाहिए, किससे चाहिए? देश से चाहिए नहीं, भूखमरी से चाहिए। क्वालिफाई कर दिया ना, लिमिट कर दिया, तो कन्हैया कुमार और बाकी के उनके साथी बच निकले, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने इनकी पावर को तो कम कर दिया, सरकार के पास जो पावर थी उसे कम कर दिया, अपने पास जो पावर है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में उसे एम्पलीफाई करते चले जा रही है। डिस्टॉर्टेड प्रायोरिटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देयर आर डजन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस दैट नीड टू बी डेस्परेटली एड्रेस्ड, सच एज CAA, जो कि प्रशांत भूषण ने ये कहा कि 5 जजेस, 5 CJIs का कंडक्ट बहुत ही सर्कमस्पेक्ट रहा है, गलत रहा है, जबकि ये सारे केसेस पड़े हैं और जुडिशरी मजे मार रही है, राइट। तो CJIs ने काम औने पौने केसेस सुनने में टाइम वेस्ट कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मैटर और द इश्यू ऑफ हेबियस कॉर्पस पिटिशंस फ्रॉम J&K, बट सुप्रीम कोर्ट हैज चोजन टू फाइल द केस based on 2 tweets of a lawyer, Prashant Bhushan. It has done more damage when the judiciary took cognizance of it. कभी कभी होता है ना कि हाथी को चलते रहना चाहिए, कुछ चीजों को इग्नोर करना चाहिए। अब ये हर ट्वीट्स वगैरह को आप संज्ञान में लोगे तो आपने अपना डैमेज और ज्यादा कर लिया। हो सकता है कि प्रशांत भूषण की ट्वीट्स कोई ना ही पढ़ता, लेकिन आपने ये कर दिया तो आपने इसको और ज्यादा पंगा ही ले लिया, राइट। Clear? To ensure their orders are implemented, तो ये देखो अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अब आप अगर ऐसे छोटी मोटी ट्वीट्स वगैरह को देख के खुद ही उछल जाओगे, पहले तो बाइक पे नहीं बैठना। अच्छा चलो बाइक का शौक है तो बीजेपी लीडर की बाइक पे नहीं बैठना चाहिए था। अच्छा चलो फिर भी बैठ गए तो ये बखेड़ा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में नहीं करना चाहिए था, है ना। इंडिविजुअल का क्रिटिसिज्म लेके ये CJI को ये बोल देना चाहिए था कि हाँ मुझे मास्क पहनना चाहिए था, मेरा ट्रैफिक पुलिस चलान किया जाए, तो वो ज्यादा शोभा देता, रूल ऑफ लॉ को ज्यादा प्रोटेक्ट करता। टू इंश्योर देयर ऑर्डर्स आर इंप्लीमेंटेड, व्हाई द कोर्ट्स नीड कॉन्टेम्प्ट पावर टू सस्टेन द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ, व्हाइल द जुडिशरी इश्यूज ऑर्डर्स दे आर इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज। इफ द कोर्ट्स आर अनेबल टू एनफोर्स देयर ऑर्डर्स, then the rule of law itself will come to a grinding halt. Yes, कुणाल कामरा भी फंस गए इसमें, है ना। तो ये केस का नाम आ गया जो मैंने तुम्हें डिक्टेट किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट कॉन्टेम्प्ट जुरिसडिक्शन शुड नॉट बी यूज्ड बाय जजेस टू अपहोल्ड देयर ओन डिग्निटी। Here CJI ऐसे बोबडे is using this contempt power to uphold its own dignity. In the free marketplaces of ideas, criticism about judicial system or the judges should be welcomed, so long as the criticisms do not impair or hamper the administration of justice. In Otto Shankar's case, Jeevan Reddy justice invoked the famous Sullivan's doctrine that public persons must be open to stringent comments. अगर आप पब्लिक लाइफ में हो तो छुई मुई सुई इधर से चुभ गई, ये काम नहीं चलता। अगर इतने ही डरपोक हो, पब्लिक कमेंट्स तो आएंगे, आप काम करोगे तो आपके पुतले भी बनेंगे, जलाए भी जाएंगे, नेताओं के भी जलाए जाते हैं। तो आप अगर ऐसे छुई मुई चीजों से जो है ऑफेंड हो जाओगे तो आप पब्लिक लाइफ में होना डिजर्व ही नहीं करते, राइट, इवन इफ दे आर अनट्रू। तो यहां तक कह दिया था इसमें। अरुंधति रॉय, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ कंडक्ट ऑफ अ जज, the institution of the judiciary and its functioning may not amount to contempt if made in good faith and in public interest.
क्लियर? तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, बाकी सारी मुलगांवकर प्रिंसिपल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग दैट हेल्ड एडवोकेट प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, हिज काउंसिल हैड साइटेड मुलगांवकर प्रिंसिपल्स अर्जिंग द कोर्ट टू शो सम रिस्ट्रेंट। कोर्ट को बोला कि थम जाओ। Mulgaonkar is a case that led to a landmark ruling on the subject of contempt. By a 2:1 majority, the court held that Mulgaonkar, then editor of Indian Express, not guilty of contempt, although the same bench had initiated the proceedings. Justice Iyer's counsel of caution, उस time Justice Iyer was one of the judges on this bench. उन्होंने ये counsel किया बाकी के judges को कि we should exercise caution in the contempt jurisdiction. It came to be called as Mulgaonkar principles, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर का नाम था मुलगांवकर। Got it? The case, an article by A.G. Nurani in the newspaper about certain judicial decisions during emergency period, especially the habeas corpus case, had displeased the then CJI M.H. Beg. ठीक है, initially the Supreme Court registrar wrote to the editor Mulgaonkar seeking a retraction and an apology. A.G. Nurani ने आर्टिकल लिखा था और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर को जिम्मेदार ठहराते हुए सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ये कहा कि इस आर्टिकल को वापस लिया जाए। अंडरलाइनिंग हिज रीजंस फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग द कोर्ट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, उस समय जस्टिस अय्यर ने ये कहा, first rule in the branch of power is a wise economy of use of the power by the court of this branch of jurisdiction. This branch मतलब contempt branch of this court, right? Power, contempt branch of this jurisdiction. The court will act with seriousness and severity where justice is jeopardized by a gross and unfounded attack on the judges. The court will act with seriousness and severity where justice is jeopardized by a gross and or unfounded attack on the judges, where the attack is calculated to obstruct or destroy the judicial process. Only in those cases should the contempt jurisdiction of the court be invoked. In rest of the cases, it should be sparingly or it should not be used at all. The court is willing to ignore by a majestic liberalism trifling and venial offenses. The dogs may bark, the caravan will pass. Dogs जो है bark करते रहते हैं, हाथी निकल जाता है ना। तो ये था कोर्ट विल एक्ट विद सीरियसनेस, ये हो गया। नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, अब इसे थोड़ा सा खुद पढ़ोगे, राइट? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे हाई कोर्ट्स इन द जुडिशियल सिस्टम। क्लियर? यस मनोरंजन, यू आर राइट। ओके, सो ये था हमारे आज के इस लेक्चर में गाइस। आई होप यू एंजॉयड द एनालिसिस इन ऑल। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी था, 2 टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं। हाई कोर्ट्स प्रोबेबली कल हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाएगा, हाई कोर्ट्स वाला। सबऑर्डिनेट में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का टॉपिक हमने वो भी कवर कर लिया। सो आई सीक योर लीव फॉर द डे गाइस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।